So we are back again, class 12th maths, vectors. We are doing the assignment, practice paper 3 in the previous class. So this will be now episode number 19 and we will start with practice paper 3, question number 20. First 19 questions we have already done in the previous episode, episode number 18. So we will now start without wasting any more time, question number 20, which is very interesting question. And it's an important question also. So I'll rub this part of the blackboard and start question number 20. So the assignment is there as a link in the description below. So you can just download it from there, and if you don't have the download facility, anyway I'll write the question for you on the blackboard. So now we are doing question number 20. Alright. What is given is A, B, C are unit vectors. So magnitude of A is 1, it is given to you. Magnitude of B is also 1. So if you don't write the entire question तो भी चलेगा. तो अब हम vectors 12th maths का vectors का क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसको मैंने एक असाइनमेंट के फॉर्म में आपको एक लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. उसका क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं. पहले 19 क्वेश्चन हम पिछले एपिसोड नंबर 18 में कर चुके हैं. ये एपिसोड नंबर 19 है. और आपको क्या दिया है, A डॉट बी 0 दिया है और A डॉट सी भी आपको 0 दिया है. ऑलराइट. एंगल बिटवीन बी एंड सी थीटा दिया हुआ है. काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है आपको. एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज theta. You have to prove vector A is equal to plus minus twice of vector B cross C. इसको आप important question मान के चलिए. Alright. So आपको magnitude of A, B, C 1 दिया हुआ है, A dot B 0 दिया हुआ है. इससे क्या पता लगेगा? इससे ही पता लगेगा कि A is perpendicular to B. और इससे क्या पता लगेगा, A is perpendicular to C. If the dot product of two vectors is 0, then the vectors are at right angle. So similarly, from here also you can draw the inference. So A is perpendicular to B and A is perpendicular to C. Now can you say therefore A is perpendicular to plane containing B and C? See, two vectors are always coplanar. So if I say A is perpendicular to B as well as A is perpendicular to C, then you can draw an inference that A is perpendicular to both B and C, that is A is perpendicular to the plane containing B and C. Do you know that B cross C vector, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? B cross C is a vector which is perpendicular to both B as well as C, or perpendicular to the plane containing B and C. So we know that B cross C is a vector perpendicular to plane containing B and C. So B cross C एक वेक्टर है which is perpendicular to the plane containing B and C. A is also perpendicular to the plane containing B and C. So therefore, can I say A is parallel to B cross C? अब तुम कहोगे सर ये कैसे बन गया? चलो एक डायग्राम बना के देखते हैं. ये देखिए, ये मैंने एक प्लेन बनाया. B और C इसके अंदर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. ये हो गया B एंड C. ये एक वेक्टर हो गया जिसको हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, और ये हो गया आपका B क्रॉस C. अब आपका जो वेक्टर A है वो भी इस पे परपेंडिकुलर है. ये रहा आपका वेक्टर A. So A is parallel to B cross C because when two vectors are perpendicular to the same plane, they are parallel to each other. Now do you remember the golden rule? If two vectors are parallel, one of the vectors can be written as scalar multiple of other vector.
So we had called this as ASC golden rule. So if two vectors are parallel, one vector is some scalar multiple of other vector. So now you see I am getting the shape of my answer. Vector A is equal to plus minus 2. So what do you mean now? हमको किसी तरीके से लैम्डा को प्लस माइनस 2 प्रूव करना है और अभी तक ये इन्फॉर्मेशन यूज नहीं हुई है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज 1 एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज नॉट थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज 30 डिग्रीज. तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. सो कैन आई रब द ब्लैक बोर्ड एंड राइट फर्दर? So let me recap the question for you. You are given 3 unit vectors. A is perpendicular to B, A is perpendicular to C, therefore A is perpendicular to B as well as plane containing B as well as C. B cross C is also a vector which is perpendicular to the plane containing B and C, therefore A and B cross C are parallel to the same plane, are perpendicular to the same plane, hence they are parallel to each other, therefore A is parallel to B cross C, therefore if two vectors are parallel, one of the vectors can be written as scalar multiple of other vector. So let me rub this off and continue from here further. तो जब आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे. आप देखिए इधर, अब मेरे पास ये एक लाइन है जो मैं प्रूव कर चुका हूं. Now if two vectors are equal, can I say their magnitudes are equal? Obviously, if two vectors are equal, they have same magnitude as well as same direction. तब इसका भी रोल खत्म हो गया. Now what is magnitude of vector A? वो आपको given था 1 है और इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, इस पे लगेगा mod lambda magnitude of vector B cross C. इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ. Magnitude of lambda A, lambda is a scalar, is mod of lambda into magnitude of vector A. आगे आपका A. अब what is magnitude of B cross C? बोलिए, what is magnitude of B cross C? Magnitude of B, magnitude of C, sine of angle between them which is given to be sine 30. What is magnitude of B? 1 given है. Magnitude of C भी 1 given और sin 30 कितना होता है? 1/2. So what is mod of lambda? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 2. So what is lambda? mod हटाते हैं तो आपको मालूम है प्लस माइनस 2 आता है. So therefore vector A is equal to plus minus twice of B cross C. हो गया आपका ये प्रूफ. तो वेक्टर A is equal to plus minus twice of B cross C. Okay, now we can do question number 21. So can I rub it off? Okay, if you are taking more time, then you can pause and write it. I will now continue with second question. So when I am doing a numerical, you just pay attention and try to understand. Later on, you can write the solution. Okay. Doing both the things at the same time is little difficult. Now I am doing question number 21. Now again you are given a unit vector. A is a unit vector. If a unit vector A makes angle pi by 4 with I cap, तो मतलब x एक्सिस के साथ ये एंगल pi by 4 बना रहा है. J cap के साथ that is angle बीटा, ये एंगल बना रहा है पाई बाई 3 एंड z एक्सिस के साथ आपको एंगल निकालना है. वैसे तो गामा सिंबल होता है, ठीक है, वो आपको निकालना है. इन्होंने ऑथर ने सिंबल थीटा दिया हुआ है एंड दिस इज गिवन टू बी एन एक्यूट एंगल. तो आपको क्या दिया हुआ है? एक यूनिट वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है पाई बाय 4, y एक्सिस के साथ बना रहा है पाई बाय 3 और z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा वो हमें निकालना है और उसका एक सेकंड पार्ट भी है. अब इन तीनों एंगल्स के बीच में मैंने आपको पहले बताया था कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. कब आप ये सोचें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होता है, 90 होता है, 360 होता है, नहीं. इसके लिए आपको एक थ्योरम ये वाली यूज करनी पड़ेगी. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज 1. डू यू रिकॉल दिस थ्योरम? दैट इज cos square alpha
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. Okay, so this is the theorem which we have learned in the theory class. Sum of the squares of the DCs is 0. अब अल्फा कितना दिया हुआ है आपको? पाई बाय 4, बीटा पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. बोलिए, कोई डाउट है इसमें आपको? Okay, so this is the formula you have to remember and then you are putting the values. Cos pi by 4 that is cos 45 degrees. ये कितना होता है? Cos 45 degrees 1 by root 2 होता है. ये टेबल से आपको याद रखना पड़ेगा. ये 60 डिग्रीज होता है. Cos 60 कितना होता है? वो भी आपको याद रखना पड़ेगा 1 by 2. तो कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं. अब 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2 होता है, इसका स्क्वायर 1 by 4 होता है. इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो ये 3 by 4 हो जाएगा. उधर जाके आप माइनस करेंगे 1 में से 3 by 4 तो ये 1 by 4 होगा. 3 by 4 उधर चला जाएगा ना, 1 minus 3 by 4 एलसीएम लेंगे तो 1 by 4 आ जाएगा. ऑलराइट, अब इधर का मिटा देते हैं, इसका रोल खत्म हो गया. So what will be cos gamma when you take square root? Plus minus 1 by 2. But gamma is given to be an acute angle. तो cos gamma कितना हो जाएगा? फिर आप माइनस हटा देंगे 1 by 2. So what will be gamma? pi by 3, 60 degrees. सो आंसर आपका हो गया. आंसर में ना गामा की जगह उन्होंने सिंबल थीटा यूज़ किया है, तो हम आंसर में जाके ना गामा की जगह थीटा लगा देंगे. सो इस क्वेश्चन में मतलब क्या था? इस क्वेश्चन का आपको कोई दो एंगल्स दिए, वेक्टर मेक्स 2 एंगल्स विद एक्स एंड वाई एक्सिस अल्फा एंड बीटा, आपको तीसरा एंगल निकालना है. ओके, तो कोई भी दो दे सकते हैं, आपको तीसरा निकालने के लिए यही एक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Okay, so now we'll go to question number 22. लिखने के लिए आप वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिए और उस समय आप पॉज कर करके इसको लिखते जाइए, और खुद करेंगे तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं. Find the scalar component of a unit vector which is perpendicular to the vectors. आपको दो वेक्टर्स दिए हैं. क्वेश्चन में ए नहीं दिया नाम, खाली ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, ए और बी हम खुद नाम दे रहे हैं. अब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी. सो दैट यू हैव ऑलरेडी नो, इफ यू हैव टू फाइंड a vector perpendicular to vector A as well as B, do not use your brains. दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि A क्रॉस B जो वेक्टर होगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो व्हाट विल बी A क्रॉस B? ये भी हम बहुत बारी बना चुके हैं. एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के, सेकेंड रो में इनके कोफिशिएंट्स लेंगे 1, 2, -1, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लेंगे 3, -1 एंड 2. ओके, अब इसको एक्सपैंड करना है आपको. ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे. 2 2 4, -1 -1 +1, एक माइनस आप अपनी मर्जी से डालेंगे. जब जे लिखते हैं तो एक माइनस लिखते हैं. फिर ये वाला कॉलम खा जाते हैं 1 × 2, फिर 3 × -1 -3, लेकिन एक माइनस आप खुद डालते हैं, प्लस के ये रो और ये कॉलम जाएगा -1 -6, 1 × -1 -1, 3 × 6 और माइनस आप खुद डालेंगे. तो ये कितना हो गया? 3i -5j -7. सो दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. अब आपको इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इनका मैग्नीट्यूड लेंगे. तो अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक स्क्वायर रूट बनाएंगे और इन तीनों नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे. तो पहला नंबर है 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा. दूसरा नंबर है
-5 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर है -7 उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स को स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो ये अब ये कितना हो जाएगा 9, 25 और ये हो गया 49। ओके, तो अब इनको आपको ऐड करना है। तो 49 और 9 और 25 तीनों को ऐड करेंगे। एक इसमें आप 1 बढ़ा दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, फिर 8 डाल दीजिए तो 58 हो जाएगा। इन दोनों का सम, उसमें से 25 आप ऐड कर लीजिए। ओके, तो 8 और 5 ऐड करेंगे 13, आपका 83 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो आप रूट 83 का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। इज ओके? फाइन। अब इस मैग्नीट्यूड को इसके डिनोमिनेटर में प्लेस कर देते हैं तो यू विल गेट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, अभी इसका काम खत्म हो गया। सो व्हाट विल बी योर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी? यू टेक ए क्रॉस बी, डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं भी लगाया तो उसको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। 3i माइनस 5j माइनस 7k, इसको आप डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 83 से। ओके, तो अब ये बन गया यूनिट वेक्टर। अब इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ऐसे करके। 3 रूट 83 i कैप माइनस 5 रूट 83 j कैप माइनस 7 रूट 83 k कैप। हो गया, ये यूनिट वेक्टर बन गए। यू नो व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ i j k? नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर। ओके, अब हमें क्या निकालने हैं? स्केल। इसका x कंपोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का? ओके, i का कोफिशिएंट प्लस माइनस, नहीं वो स्केलर कंपोनेंट होगा, i के साथ ये x कंपोनेंट होगा। तो आप प्लस माइनस लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। नहीं लिखते हैं थोड़ा सा ये आंसर भी हमारा नीट लगेगा। ये देखिए, ये आ गया आपका x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या आएगा आपका? -5 रूट ऑफ 83 j कैप, और z कंपोनेंट आपका क्या आया? -7 रूट ऑफ 83 k कैप। अब आपसे मांगे हैं स्केलर कंपोनेंट्स। क्या मांगे हैं? आपसे मांगे गए हैं स्केलर कंपोनेंट्स। तो x कंपोनेंट क्या होगा आपका? 3 बाई रूट 83 माइनस 5 बाई रूट 83 एंड माइनस 7 बाई रूट 83। अगर आप प्लस माइनस लेते तो और करके, एक है नेगेटिव, ये प्लस और ये प्लस, तो दो सेट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स आपके हो जाते। तो आपके स्केलर कंपोनेंट क्या बना है? क्वेश्चन नंबर 22 में फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b. So is this question clear? So now we can proceed to the next question. Question number 23, 24 and 25, they are very easy. So now we will do question number 23. Find magnitude of vector x. For a unit vector, find magnitude of vector x if a unit vector a. ये आपको निकालना है। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और आपको एक चीज दी हुई है, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 12. So this is a very small question. x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो एलजेब्रा वाला फॉर्मूला होता है ना, वैसा वेक्टर्स में लगता है सिमिलर फॉर्मूला। एलजेब्रा में आपको फॉर्मूला मालूम है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी के स्टाइल पे ये वाला फॉर्मूला भी आपका डिराइव हो जाता है। सो एक्स माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये होता है। अब आपको मालूम है बहुत फेमस लाइन, स्क्वायर ऑफ वेक्टर
इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? 1। उधर जाके ये 3 हो जाएगा। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स? डोंट पुट प्लस माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। सो दिस इज a very simple 1 mark question, and this is also from NCERT book. Now we'll do question number 24. तो shall I repeat the solution once again? ये आपने ये गिवन है, ये आपने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह आपने ऐसे लिख लिया, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम होता है। ये आपको 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उधर जाके ये 3 हो जाएगा, और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो ये NCERT का एक सिंपल क्वेश्चन अभी आपने देखा। ओके, इन सारे क्वेश्चंस में हम MCQ बना सकते हैं। उसमें से एक आंसर √3 डाल देंगे करेक्ट वाला, बाकी 3 आंसर हम गलत डाल देंगे मिलते जुलते। ऑलराइट, अब इसके अंदर दिया हुआ है, गिवन सेम है, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, आपको दिया गया है 8, और क्या दिया गया है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ओके, सो a प्लस बी डॉट ए माइनस बी 8 दिया हुआ है, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? पहले ऐसे कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है ब्रैकेट बनाने की भी, आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वो जब आप यहाँ डालेंगे ऐसे, और उसको साथ साथ स्क्वायर भी कर देते हैं, तो जब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, और वो क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। हमने यहाँ क्या डाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की जगह ये वाली टर्म डाली और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था। 8 स्क्वायर इज 64 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अब ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, मेरे को खुद अब डाउट हो गया है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्योंकि यू लुक एट द सोल्यूशन। अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8/63। रूट ऑफ 8 को तो मैं लिख सकता हूँ 2√2 रूट 63, तो ऐसे ही रहेगा। तो अब मन में बहुत शंका हो जाती है जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि जब ऐसा आंसर आता है तो खुद को डाउट हो रहा है। मेरे को भी अभी डाउट होने लगा है, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं कोई क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो एक बारी क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। चलो भाई फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो इन दोनों का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो आपका हो गया स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दिया हुआ है, इसको मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दिया है, स्क्वायर करेंगे इसको तो 64 हो जाएगा, ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब 64 b स्क्वायर में से ये वाला b स्क्वायर माइनस करेंगे तो 63 आएगा, ये नीचे चला जाएगा। ऑल राइट, अब देयरफॉर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो वो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स, तो ये आपके आंसर आ गए। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a हो गया और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b हो गया। All right, so now we do another question. Question number 25. Okay, so let's do question number 25.
आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 दिया हुआ है और ए डॉट बी आपको 8 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है। अगर आपके पास असाइनमेंट सामने है ना, जैसे ये असाइनमेंट मेरे सामने है, अगर आपके पास ये असाइनमेंट सामने है तो आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ के कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेने की हालत में है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर बी दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ए डॉट बी आपको 8 दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब बताइए इसको कैसे करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ओके, इसके अंदर ना फिर हम स्टार्टिंग लाइन लगाएंगे, थोड़ी सी टिपिकल है, आप ये फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। सो इट्स नॉट दैट इजी टू स्टार्ट, क्योंकि ये आपको एकदम आउट ऑफ द ब्लू स्ट्राइक करना चाहिए। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है, ये ओपनिंग लाइन चैलेंज है ये, क्योंकि आपको अपनी मर्जी से सोचनी पड़ेगी। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला भी अलजेब्रा की सिमिलर फॉर्मूला है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इसके बीच में डॉट लगेगा। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बीच में डॉट या क्रॉस तो आना जरूरी है, खाली स्पेस नहीं हो सकती। अब स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ए डॉट बी तो पक्का पक्का है दिया है, तो इसको यहाँ से मिटा दिया जाए और इसको ए डॉट बी ही छोड़ दिया जाए। बस अब आप वैल्यूज डाल दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, बी का है 5 और 2 ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 8। तो आपको अलग से ए डॉट बी को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो ऐड करना बचा है 4, ये 25, ये हो गया 16, 4 में 25 ऐड करेंगे 29 आएगा, 16 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 13। सो व्हाट इज योर आंसर। अब जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, फिर से प्लस माइनस मत लगाइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का जो हाईलाइट था ना, जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट था, वो ओपनिंग लाइन थी। इसको ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखना, नंबर्स डालना, वो तो बहुत नेचुरल स्टेप्स है। दिस वाज समथिंग टिपिकल द ओपनिंग स्टेप। सो इस क्वेश्चन का हाईलाइट ओपनिंग स्टेप है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26. Few more questions are left, then our vectors chapter will be over. Sometime later I will revise some questions from NCERT, but let us first finish the assignments I am holding in my hand. Question number 26. The scalar product of the vector I plus j plus k with the unit vector along the sum of two vectors is equal to 1. All right. तो ये क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज बहुत फ्लोइंग है। आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, फिर आपको उनको ऐड करना है, सम ऑफ द वेक्टर्स। उन दो वेक्टर्स को हम, और एक वेक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको नाम दे देते हैं i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और फिर दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k, और एक और वेक्टर दिया, इसको नाम दे देते हैं हम, इनको नाम ही नहीं देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा वेक्टर दिया गया है लैम्डा i, इसमें लैम्डा अननोन है, 2j प्लस 3k, इनका हमें सम निकालना है, तो इसको हम नाम देते हैं वेक्टर b। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो पहले हम इसका सम निकालते हैं। सो वी हैव टू ऐड सम और रिजल्टेंट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। तो अब आप इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2i प्लस लैम्डा i प्लस 4j, ये लैम्डा i यहाँ से आया ना, प्लस 2j माइनस 5k प्लस 3k। ओके, अब ये कितना बना, ये बना 2 प्लस लैम्डा i
प्लस 6j माइनस 2k, ये आपका वेक्टर बी आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो उसके लिए आपको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और इसका मैग्नीट्यूड बहुत गंदा निकलेगा क्योंकि इसमें लैम्डा अननोन है। आई के कोफिशिएंट को स्क्वायर किया, जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर किया 36, के कोफिशिएंट को स्क्वायर किया -2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना आया, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, 40 आया। नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट ए वेक्टर इनटू ए यूनिट वेक्टर? बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ क्या आएगा, डिवाइडिंग ए वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको फिलहाल ना हम आगे ऐसे लिख देते हैं, और ये वाला वेक्टर यहाँ लिख देते हैं, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। ओके, तो आपने वेक्टर बी लिया, उन दोनों को ऐड करके बनाया, लाइक टर्म्स को क्लब किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आपको एक यूनिट वेक्टर मिल गया। ये जो स्केलर है ना, मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग करके तीनों के नीचे भी लिख सकता हूँ और सामने भी लिख सकता हूँ। अब आपको कुछ और भी दिया है, आपको बोला है कि इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके साथ दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज गिवन, ये जो वेक्टर है बी कैप, इसका इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 1 दिया हुआ है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर, ये वाला, along the sum of two vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda i plus 2j plus 3k, इसलिए तो मैंने उसको सम किया और उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू 1। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका इस वेक्टर के साथ स्केलर जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट वो 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो स्केलर है ना इसको तो आप बाहर रख लीजिए, ऑलराइट। तो ये आपका यहां आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40, और ऐसे करके फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाएंगे, 1 2, और वहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए कि मेरे को, तो मेरे को ए के कोफिशिएंट चाहिए और बी के चाहिए, तो ये वाली जगह अभी मेरे को मिटाई जा सकती है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 1। हाउ डू यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट इज यू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स ऑफ i's, देन यू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ j's, देन k's एंड देन ऐड देम। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस लैम्डा, वो इधर आएगा, फिर j का इधर आएगा 6, और फिर k का -2, और पीछे वेक्टर क्या है a, उसके तीनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं 1 1 एंड 1। अब इसको भी मिटा दिया जाए, इसका रोल खत्म हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नंबर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, और ये जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। इज इट ओके? अब ये 2 और -2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 ये आ गया। अब इसको ना ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40। अब हम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम ऑलमोस्ट अपने अब आंसर के करीब हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 12 लैम्डा, और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर 4, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 40। अब दोनों तरफ से लैम्डा स्क्वायर तो कट गया, ऑलराइट। आप रीअरेंज कर लीजिए, तो अब आपका क्या आएगा, 4 लैम्डा उधर चला जाएगा, तो व्हाट विल यू गेट 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा,
ये देखिए ये वाला 4 लैम्डा वाली टर्म उधर चली गई। यहाँ क्या बचा आपका, ओ इज इक्वल टू 40 कहाँ से आ गया, ये प्लस 40 था। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 40। अब लैम्डा स्क्वायर कट गया, 12 लैम्डा और 4 लैम्डा उधर चला गया ये। ऑल राइट, सो लैम्डा स्क्वायर कट गया, 36 प्लस 12 लैम्डा लेफ्ट में था, तो 12 लैम्डा को मैंने वहीं रखा, 4 लैम्डा मैं उधर ले गया, इधर ये 4 और 40 बच गया। ओके, लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 लैम्डा उधर चला गया, 4 प्लस 40 44, जिसको मैं 44 लिख दूंगा, और ये 36 इस तरफ आ जाएगा। अब 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा। 40 में से 36 गया 4 और 4 ऐड होके 8 हो गया, तो लैम्डा 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का जब आंसर आता है ना 1 2 3, तो हमको कॉन्फिडेंस होता है। अभी मेरे को भी कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर करेक्ट है। पिछला वाला जहाँ एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आया था स्क्वायर रूट ऑफ 8/63, ऐसा नंबर हमें बहुत डराता है एग्जाम में, ऐसा आंसर। तो अब इसमें अगर अब यहाँ पे भी लैम्डा आता ना, जैसे कोई अजीब सा नंबर 1/3, तो खैर इतना अजीब नहीं है, स्क्वायर रूट में होता तो फिर से मन में एक शक पैदा होता है कहीं हमने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी है। अब मेरे को देखो ये भी गलत हो सकती है, लेकिन इसमें हमें कोई शक पैदा नहीं हो रहा है कि ये कैलकुलेशन गलत है। मेरे को भी मन नहीं कर रहा कि कौन चेक करेगा अपनी कैलकुलेशन रिवर्स में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 28 and 29 आर लेफ्ट, एंड देयर इज सम मोर थ्योरी आई वुड लाइक टू डिस्कस विद फॉर द वेक्टर्स, कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं वेक्टर्स के या डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं वेक्टर के, सो हाउ विल यू रिकंस्ट्रक्ट द वेक्टर। So that theory we will discuss, and 20th will be the last episode of practice paper 3, so which will follow episode number 19. So we'll end the class today and we'll meet again in episode number 20, and that perhaps will be the last class of vectors, and next topic we are going to start after that will be coordinate geometry. I hope you enjoyed the class. Please watch the video twice. If some things are not clear, you can mention them in the comments. Thank you.